Good morning, students. It's your civics class, chapter first. Name of the chapter is Role of the Indian Constitution. In this chapter, I teach you about Indian Constitution, importance of Constitution and the features of the Indian Constitution. The Indian Constitution. बेटा, रूल्स आर मेंट टू बी फॉलोड. हम रूल्स बनाते हैं इसलिए ताकि वो फॉलो किए जाए. व्हेन वी आर इन अ स्कूल, स्कूल रूल्स. व्हेन वी आर इन सम ऑफिस, वी फॉलो द रूल्स ऑफ दैट ऑफिस. ऑन रोड, वी फॉलो ट्रैफिक रूल्स. सिमिलरली, इन अ कंट्री, we also have to follow that country's rules. Means the country in which we are living. Some guidelines, some rules that are meant, we have to follow them. Constitution is a set of rules according to which a country is governed. It is an important law. It may be written or unwritten. Constitution consists of certain fundamentals, principles, means certain fundamental principles according to which a nation or state is to be governed. Now the point arises, why do we need constitution? जरूरत क्यों होती है संविधान की? ऐसे ही सब चलता रहे? No. It's very important. अगर सब ऐसे ही चलता रहेगा तो अराजकता फैल जाएगी, अफरा तफरी फैल जाएगी, चारों तरफ हाहाकार मच जाएगा. रूल्स रेगुलेशंस तो जरूरी हैं किसी भी कंट्री को रन करने के लिए. इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन दैट डिफाइंस द रोल एंड पावर्स ऑफ एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर. मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन में बताता है कि क्या क्या पावर्स हैं किसी भी हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की. इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, पीपल आर इलेक्टेड in order to rule and serve the interests of the public, and on the basis of these guidelines that any democratic government makes laws. और जो डेमोक्रेटिक कंट्री होते हैं तो उनमें जो लोग होते हैं अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और रिप्रेजेंटेटिव के लिए पहले ही गाइडलाइंस होती हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग से देश को चलाना होता है. The Constitution lays down the basic ideas to govern the country. It lays down certain principles that help in the decision making of the country. It provides laws for protecting the country, protecting the minority, grants the citizen the right to equality without being discriminated against. और Constitution में ही ये सब मेंशन होता है कि सभी नागरिक बराबर हैं, किसी के साथ किसी भी तरह का भेदभाव न किया जाए. जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनको भी प्रोटेक्ट किया जाए. ओके बेटा. और जो कंट्री में डिसीजन मेकिंग जो भी पॉलिसीज है वो सभी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही होती हैं. हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है बेटा, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था. हमें तब भी अंग्रेजों के बनाए हुए नियम कायदे कानून के अनुसार ही हमारा देश चल रहा था. तो आर पॉलिटिकल लीडर्स, they wanted some guiding principles for the new independent India. As a result of which, drafting committee of the Constituent Assembly, which framed the Indian Constitution, Dr. Rajendra Prasad, he was the president of the Constituent Assembly, and Dr. B.R. Ambedkar, he was appointed as the chairman of the drafting committee. The Constituent Assembly took 2 years, 11 months, and 17 days to frame Constitution. And our Constitution was passed by the Assembly on 26th January 1949. But it came into force on 26th January 1950. 26th January को हम अपना रिपब्लिक मनाते हैं. It's our Republic Day because we got our Constitution on this day. और our Indian Constitution हमारे प्रियम्बल में मेंशन किया हुआ बेटा कि इंडिया इज ए सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. नाउ आई विल टेल यू द मीनिंग ऑफ दीज 5 words. The first one is sovereign.
Sovereign means India is a sovereign country. India is free from any external control. It formulates its own policies and is governed by its own government. means किसी भी बाहरी देश का कोई हस्तक्षेप नहीं है भारत में. Next word is socialist. Here in India, all the citizens are economically and socially equal. सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से सभी लोग बराबर हैं. Next word is secular, means धर्मनिरपेक्षता. In India, all are equal, as I have told you. The people are free to follow any religion. Okay, beta? And they have, even if they belong to any religion, they have got equal rights. Next word is democratic. India is a democratic country. Means here the people, means जो नागरिक हैं, जो citizens हैं, they are given the right to vote and then they elect their representative. The people are given economic, social and political democracy. उन्हें आर्थिक लोकतंत्र भी मिला हुआ है, सामाजिक भी और राजनीतिक. And here the last word is republic. India is a republic, which means that the head of the state, means our president, doesn't have a hereditary right. He is elected by an electoral college. Means ऐसा नहीं है कि एक president है, फिर उनके आने वाले generation president, आने वाले generation के president, means उन्हीं के family members ही president बनते रहेंगे, ऐसा नहीं है. A president is elected by an electoral college. In India, we have parliamentary form of government. The elected representatives form the government and at the center. It is called parliament. And this parliament consists of two houses, Lok Sabha and Rajya Sabha. Lok Sabha, as the name indicates, it is Lok means Lok. It is the house of the people. And second is Rajya Sabha. Rajya means state. It is the Lok Sabha. Powers are divided between centers and states. The center enjoys freedom in exercising powers on subjects listed in the state में state list और center होता है. State enjoys freedom in exercising powers on subjects listed in the state list. Subjects of national importance are mentioned in the union list. जो state list है उसमें state से related subjects होते हैं और जो union list है उसमें international, national, ये इस national और international importance के matters होते हैं. We have three organs of government. First is legislature, second is executive, and the third one is judicial. लेजिस्लेचर का काम होता है लॉज बनाना. इट फ्रेम्स द लॉज. एंड एग्जीक्यूटिव इट एग्जीक्यूट्स, मीन्स ये एनफोर्स करती है लॉ को. एंड द नंबर 3 इज जुडिशरी. इट चेक्स वेदर द लॉज आर बीइंग फॉलोड और नॉट. इट सेटल्स डिस्प्यूट्स. बेटा हमारे संविधान में बहुत कुछ है और स्पेशली हमारे फंडामेंटल राइट्स. हमें हमारे संविधान में राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. फर्स्ट इज राइट टू इक्वलिटी, मीन्स समानता का अधिकार. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन guarantees equality to all before the law. The state cannot discriminate a citizen on the basis of religion, caste or place of birth. बेटा हमारे संविधान ने सभी को बराबरी का अधिकार दिया है, समानता का अधिकार. यानी भारतीय संविधान के अनुसार सभी नागरिक बराबर हैं, भले ही वो किसी भी धर्म के हैं, किसी भी जाति के हैं, भले ही वो स्त्री हैं, पुरुष हैं, किसी भी धर्म से वो संबंध रखते हैं और उनका जन्म भारत के किसी भी हिस्से में हुआ है. दे ऑल आर इक्वल. नेक्स्ट इज राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार. सभी नागरिक जो हैं हमारे भारत में वो स्वतंत्र हैं कि वो अपनी
बात कह सकते हैं, इकट्ठे हो सकते हैं पीसफुली, यूनियन वगैरह बना सकते हैं, देश में किसी भी हिस्से में जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं, किसी भी हिस्से में रहने का अपना घर बना सकते हैं। दे ऑल आर फ्री। कुछ भी प्रोफेशन फॉलो कर सकते हैं, कुछ भी जॉब कर सकते हैं। ओके बेटा, वी ऑल हैव गॉट फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, freedom to form associations and unions, freedom to move freely throughout the country, freedom to reside and settle in any part of the country, freedom to practice any profession or to carry out any occupation, trade or job, business, whatever. Next is right against exploitation, शोषण के विरुद्ध अधिकार. The dignity of individuals is recognized and protected against any type of exploitation by the Indian Constitution. यानी किसी भी प्रकार का किसी भी व्यक्ति का शोषण अगर हो रहा है तो आप उसके खिलाफ न्यायालय की शरण में जा सकते हैं. Right to freedom of religion. Again the same thing. The Constitution guarantees right to freedom of religion according to which और रिलीजन्स आर इक्वल बिफोर द स्टेट. कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी भी धर्म का पालन कर सकता है और किसी भी धर्म का प्रचार भी कर सकता है. कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स राइट्स टू माइनॉरिटीज. इंडियन पीपल हैव द राइट टू कंसर्व देयर स्क्रिप्ट, एजुकेशन, लैंग्वेज, कल्चर. और वो अपने धर्म से संबंधित कहीं भी कोई भी इंस्टीट्यूशन अपने कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी खोल सकते हैं. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन लीगल सैंक्शन टू सिटीजन्स एंड ऑल्सो गिवन द राइट टू जुडिशियल रेमेडीज इन केस ऑफ एनी इन्फ्रिंजमेंट. बेटा अगर कोई भी ये जो आपको मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, फंडामेंटल राइट्स दिए हुए, कोई भी इनका हनन करता है, इंटरप्ट करता है आपको इन्हें एंजॉय करने में, या आपको नहीं मिल पा रहे हैं आपके फंड टू कोर्ट, आप उस व्यक्ति, उस संस्था, व्हाटएवर इट इज के खिलाफ कोर्ट में केस कर सकते हैं. सिर्फ यही नहीं कि हमें अच्छी अच्छी बातें ही मिलती रहेंगी, हमें कुछ रूल्स भी मिले होते हैं साथ के साथ. जैसे घर में हमारे पेरेंट्स हमें बहुत सारी फैसिलिटीज देते हैं, इसके बावजूद भी हमें कुछ रूल्स भी फॉलो करने होते हैं. तो सिमिलरली हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी दी हैं. यानी एक देश, हम अपने भारत के नागरिक होने के नाते देशभक्त हमें बने रहना है और हमें कुछ अपने मौलिक कर्तव्य हैं हमारे, उनका भी हमें पालन करना चाहिए. Here we are having 10 fundamental duties to abide by and respect the Constitution, the national flag and the national anthem. हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, हमारे संविधान, इन सब का सम्मान करना है और इनका पालन भी करना है. And reach and follow the noble ideals of the freedom struggle. हमारे स्वतंत्रता संग्राम के समय जो हमारे आदर्श थे, हमें उनका पालन करना है और उन्हें आगे बढ़ाना है, आगे लेकर के जाना है. Uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India. देश की एकता और अखंडता का हमें सम्मान करना है, उसे कायम रखना है. ये नहीं है कि हम देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, अपने देश की सीक्रेट्स दूसरे देशों को दे रहे हैं या दूसरे देशों से मिलकर कुछ कर रहे हैं अपने देश के खिलाफ. नो. टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन रिक्वायर्ड. अपने देश की रक्षा करना और अगर कभी इस तरह की जरूरत होती है तो देश की सेवा में हाजिर होना, अपने आप को हाजिर करना देश की सेवा में अगर कभी कोई इमरजेंसी होती है. टू प्रमोट कॉमन ब्रदरहुड टू ऑल पीपल इन इंडिया एंड रेनाउंस प्रैक्टिसेस डिरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन. महिलाओं के सम्मान की रक्षा करने में और भाईचारे का पालन करना. टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द नेशंस कंपोजिट कल्चर. हमारा जो संपदा है, हमारा जो कल्चर है, उसका भी सम्मान करना है हमें. टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेशनल एनवायरनमेंट एंड हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स. अपने राष्ट्रीय पर्यावरण का भी ध्यान रखना है
और बाकी जो दूसरे जीव हैं उन सभी की भी रक्षा करनी है। टू डेवलप अ साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, जानने की इच्छा रखना है, ठीक है, वैज्ञानिक रखना है अपना मस्तिष्क को, वैज्ञानिक और मानवीयता सभी गुण इंसान में होनी चाहिए। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड ऑब्जर्व वायलेंस, हिंसा नहीं करनी है और जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है उसकी रक्षा करनी है, उसे डिस्ट्रॉय नहीं करना है। टू स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, अकेले व्यक्ति की या कंबाइंड कोई भी इस तरह की एक्टिविटी होनी चाहिए, उसमें हमेशा आगे रहना है, अच्छे से अच्छे बेहतर करना है, अपना भी नाम ऊंचा हो, पेरेंट्स का तो होगा, देश का भी नाम ऊंचा हो।